हेलो, वेलकम बैक टू अदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लास्ट ऑफ लेक्चर में हमने गॉस लॉ कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में ये नया टॉपिक ही देखेंगे। ओके, कम ऑन राइट इट डाउन। कपल एक्टिंग ऑन electric dipole. Okay, couple acting on electric dipole in a uniform electric field. Okay, uniform electric field. Okay, देखिए यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। ओके, दिस इज a uniform electric field, right? And now place a positive charge here and another charge here, negative. Okay, sorry, positive here, negative here, negative, positive. Okay, and R वही सेम। तो ये इनिशियल डायग्राम है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग लाइक दिस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस charge. Okay, it's both charges. Then what will be the final diagram? Positive moves along the electric field direction and negative moves opposite to the electric field direction. Then what will be the diagram then? Like this, right? Got it? Okay, now तो टॉर्क मालूम होगा आपको, टॉर्क। ओके, टॉर्क सुना होगा ना। तो टॉर्क यानी टाइप ऑफ फोर्स, पर इसमें देखिए, इसमें टॉ होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, दिस इज टॉर्क। ओके, दैट इज व्हाट फोर्स इज ई क्यू एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज assume this as A and C, AC. Okay, then आपको मैं डेरिवेशन दूंगा। Okay, so then what we got, EQ into AC. Okay, EQ into AC. Now like in this diagram, once more I am drawing here diagram. Okay, देखिए carefully. फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, इधर माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। ओके, नाउ राइट डाउन द प्रोडक्ट्स। ओके, लाइक दिस एंड डिस्टेंस इज 2a. ओके, at force is acting up here, so it is EQ, and what here also force is acting EQ. And products are sin theta, cos theta. Okay, now what will be the sin theta due to this diagram? AC by AB, okay, is equal to AC by what is AB? AB is distance between those two point charges. Okay, डिस्टेंस ही है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू यानी ए बी। एज्यूम किया था मैंने, ये सी ए बी, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल, sin theta is AC by AB. AC by AB is 2a. Okay, then AC is 2a sin theta. Okay, AC is what? 2a sin theta. Yeah, AC is 2a sin theta. Then torque is equal to perpendicular distance. Okay, and perpendicular distance is 2a sin theta. Then finally EQ into 2a, sorry, Q into 2a. What is Q into 2a? Potential, sorry, dipole moment. Okay, E into QA, Q into 2a is what? Dipole moment. समझ गए ना?
तो फिर फाइनली फॉर्मूला होगा पी ई साइन थीटा. ओके, remember this formula, write it down. I've shown you the derivation. Tau is P E sin theta, and what will be the tau max? Max यानी 90 degree. Then tau is equal to P E, tau max. Okay, torque max. Got it? Okay, clear? ओके, अभी और एक नया टॉपिक हेडिंग लगाइए, लीनियर. ओके, what is linear charge density? Okay, linear charge density. heading लगाइए linear charge density. So linear charge density is denoted by lambda और Q by L इसका फॉर्मूला. ओके, linear charge density, charge per length. ओके, charge per length, linear charge density. Next, surface charge density is denoted by sigma. Okay, and formula is Q by S यानी चार्ज पर सरफेस और चार्ज पर एरिया. ओके, चार्ज पर सरफेस, चार्ज पर एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी. देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, एंड द फॉर्मूला इज Q by V यानी चार्ज पर वॉल्यूम. ओके, तीनों याद रखिए. हाँ, अभी हेडिंग लगाइए charge on infinite line. Okay, charge on infinite line. Okay, now take an infinite line, plus and so on till infinite. Okay, so यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, lambda by 2 pi epsilon r, where r is the distance. Okay, r is distance from surface to charge line. Okay, a cylindrical. Okay, this is a cylinder, and from surface to charge line the distance is r. So then electric field is lambda by 2 pi epsilon naught into r. Okay, and now remember this formula. And next case देखेंगे अभी thin infinite charge sheet. Okay, thin infinite charged sheet. Okay, note it down. तो thin infinite charge sheet देखेंगे इसके बारे में. Okay, I'll give you the derivation. Now take a charged sheet. Okay, with positively charged sheet. Okay, and now here E is sigma by 2 epsilon naught. Okay, यहाँ E यानी electric field sigma by 2 epsilon naught है. Okay, right? So then then it can be written in the terms of charge. Okay, Q by 2 epsilon naught A. Okay, remember this. Okay, sigma by 2 epsilon naught or Q by 2 epsilon naught into A, and it is independent of distance. Okay, this charge sheet ये क्या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, आर पे डिपेंड नहीं करेगा ये. इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस. ओके, रिमेंबर दिस. आई एम नॉट गोइंग टू राइट. नाउ सपोज वी हैव योर 2 sheets, positively charged 2 sheets. Okay, positive. Okay, got it. Then this is sigma S, sigma B. Okay, sigma is surface charge density. This is surface, right? Charge sheet is a type of surface. Now I say always assume a positive charge. Okay, assume always a positive charge in positive charge. But in this case we are going to assume at 3 locations. Okay, 3 जगहों में आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ एक पॉजिटिव लेंगे, बीच में एक पॉजिटिव लेंगे, एंड हियर एक पॉजिटिव लेंगे. तो पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल. तो इसका डायरेक्शन यहाँ, पॉजिटिव का रिपेल तो यहाँ, एंड दिस हियर एंड हियर ऑपोजिट डायरेक्शन. देन हियर what will happen here? At electric field at 1 is equal to electric field at 3rd. Okay, this is 3rd, 2nd, 1st. Okay, 1st, 2nd, 3rd.
at first and third the E is same. Okay, E is equal, that is E1 plus E2. Remember, if they are same then you should add. Okay, sum करना चाहिए, नेट सम. तो क्या होगा नेट सम? ई का वैल्यू मैंने बोला था फर्स्ट केस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देन बोथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा सिर्फ. ओके, टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट is sigma by epsilon naught. Okay, and at second position, at second charge, at second what is the electric field net? E1 minus E2, because क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना, ये यहाँ रिपेल हो रहा है, यहाँ रिपेल हो रहा है, तो बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. देन E1 minus E2 इज 0. ओके, ई का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा. ओके, समझ में आ गया प्लस प्लस का? क्लियर? ओके ओके, समझ में आ गया ना उधर? परफेक्ट. और फिर वो अगर यहाँ माइनस माइनस लीजिए, सपोज इफ यू टेक इधर माइनस और माइनस, वही सेम प्रोसेस, प्लस कोई अट्रैक्ट करेगा, प्लस कोई अट्रैक्ट करेगा, एंड प्लस कोई दोनों तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सेम यही वैल्यूज आएंगे. ओके, अब लेंगे अलग केस. ओके, एक पॉजिटिव लेंगे, अभी एक नेगेटिव लेंगे. आपको आइडिया तो आ गया होगा थोड़ा सा. इट्स वेरी सिंपल. ओके, या टेक अ पॉजिटिव चार्ज एंड beside of that take a negative. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव. क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम हियर, एज्यूम हियर, एज्यूम हियर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, माइनस को अट्रैक्ट भी करेगा और ये प्लस से रिपेल भी होगा. ओके, और ये क्या होगा, प्लस से रिपेल होगा और माइनस से अट्रैक्ट होगा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. एंड ये क्या होगा, वही सेम, प्लस से रिपेल होगा, नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा. देन E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड. ओके, देन क्या होगा इसका आंसर, दोनों अभी अपोजिट डायरेक्शंस में ना. देखिए, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है. समझ में आ रहा है ना? आई होप सो समझ में आ रहा है. देखिए, दोनों भी नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शंस में है ना. देन द नेट इज 0 एंड एट E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम सेम. देन व्हाट विल बी द आंसर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिंपल. क्लियर? ओके ओके, तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, फिर और 2-3 टॉपिक है, फिर फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अपना. तो देखेंगे स्पेरिकल शेल. ओके, कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल का देखेंगे फंडा के. स्पेरिकल शेल. ओके, स्पेरिकल शेल कंडक्टिंग. ओके, स्पेरिकल शेल कंडक्टिंग. ओके, यहाँ एक कंडक्टिंग स्पेरिकल लो, स्पेरिकल स्पेयर लो, एंड वो पॉइंट हियर एंड रेडियस इज कैपिटल R. ओके, एंड नाउ लीजन, यहाँ मैंने एक क्यू चार्ज सरफेस पे रखा है. ओके, तो यहाँ एक पॉइंट P एज्यूम कर रहा हूँ बाहर, आउट ऑफ द सर्कल. वो से पॉइंट P में डिस्टेंस है स्मॉल r. ओके, नाउ डू अ थिंग, यहाँ चार्ज बाहर ले लो. ओके, फर्स्ट केस बाहर देखेंगे, क्यू चार्ज बाहर ले लो. ओके, देन E एट आउट, यानी आउट ऑफ द सर्कल में चार्ज का वैल्यू क्या होगा? कम ऑन गेस व्हाट इट वुड बी. ओके, may I do it? Okay, at E out it would be 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. Okay, समझ में आया कि Q? Listen, at P point to O the distance is R. Okay, they are asking the charge at
out of the circle. They are asking charge out of the circle. तो inside electric field 0 होता है. Okay, listen this point. E in is 0. Now it is outside the point and P also is outside. Okay, if I any outside, it can be anywhere, right? If I keep charge here, what it would be? Q by R square only, no, because distance between point P to center of the circle is R. समझ में आया ना? आउटसाइड मतलब किधर भी, इधर सपोज इधर रह रहा हूँ, P पे ही ले रहा हूँ, P से O पे R स्क्वायर ही है ना, R स्क्वायर ही आएगा ना. ओके, समझ, आई होप सो समझ में आया होगा. क्लियर है ना? नो डाउट. ओके, एंड नाउ sorry, 1 second. Yeah, and now inside, okay, this is a conducting sphere. Conducting sphere के अंदर चार्ज 0 होता है. Okay, so if I keep Q charge inside the circle, तो क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि conducting sphere does not have a charge inside. Okay, got it, that one? Now let's go on the circle. If I keep the charge on, okay, मैंने पहले बोला था on. If I keep the charge on the circle, then what it would be? Okay, radius is R. If I keep charge Q here, radius is R. What would be the charge? 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R square. Okay, got this? Clear? ये है कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल का फंडा, इनसाइड आउटसाइड या किधर भी. तो आज हमने 2 टॉपिक क्लियर किए थे, 3 टॉपिक, सॉरी. ओके, आई होप से समझ में आया होगा सब. कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म किया हमने. एंड सो लीनियर चार्ज, डेंसिटी, सरफेस, वॉल्यूम, वो सब. एंड दिस वन स्पेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल. ओके, तो और 2-3 टॉपिक बच के वो मैं ख़त्म कर दूंगा. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स. ओके, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, वो देखेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.